नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय बॉलीवुड अदाकारा और एमपी कंगना रनौत थप्पड़ विवाद कहीं ना कहीं सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। कंगना रनौत के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मोर्चा खोल दिया। सिखों की सबसे सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कंगना रनौत के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की बात रखी है, क्योंकि कंगना रनौत के द्वारा जो विवादित बयान पंजाब और सिख धर्म के जो है लोगों के ऊपर दिया गया, ये कह दिया गया कि आतंकवाद और इस अलगाववादी के साथ में नाम जोड़ा गया, जिसके बाद अब एसजीपीसी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर ऐतराज जताते हुए इस पर कार्रवाई की बात रखी है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हरजाब सिंह जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी हमारे साथ हैं और भाजपा से हमारे साथ में अमरजीत थिंद जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है और चर्चा की शुरुआत हरजाब जी मैं आपसे करूंगा। एसजीपीसी ने अब मोर्चा खोल दिया है। आखिर जिस तरह का पहले कंगना रनौत थप्पड़ विवाद जो है वो लगातार सुर्खियों में आया, जो है कंगना रनौत चंडीगढ़ पहुंचती है एयरपोर्ट पर, उन्हें जो है सीआई स्टाफ के द्वारा वहां पे एक महिला के द्वारा उन्हें थप्पड़ जड़ दिया जाता है, जिसके बाद कंगना रनौत के द्वारा विवादित बयान दिया जाता है और उसके बाद कई घटनाएं हमने देखी। हरियाणा की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, वहां के जो है वो कहीं ना कहीं एक अहिंसा होती हुई नजर आई, जिसके बाद सबने इस बयान की निंदा की, इस बयान की आलोचना की। उसके बाद अब कार्रवाई की बात जो है वो एसजीपीसी ने कही है। सबसे पहले क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहेंगे इस पर? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਜਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ जी ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक ਪਰ है सर, मैं चाहूंगा आप ਬੇਸ਼ੱਕ हिंदी में अपनी बात ਬੇਸ਼ੱਕ रखिए। ਬੇਸ਼ੱਕ जी ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ जी ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 100-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੀਬੀ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ सर, ਆਲਰੇਡੀ क्या ਆਪਣੇ कारण क्या है? ਆਪਣੇ सर, ਜੀ। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके पीछे ਮੈਂ शोहरत है, ਮੈਂ ਮੈਂ लेने की ਮੈਂ कोशिश ਤੁਹਾਨੂੰ है? आप जी ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਬੀਬੀ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ पार्टी ਨੂੰ लेकिन ਕਿਹਾ एक ਗਿਆ एमपी कि के ਇਹਦੇ ऊपर खिलाफ कार्रवाई, ਜਿਹੜੇ ਆ, ठीक है सर, आपने एक एमपी के ऊपर कार्रवाई की बात रखी है, वो हालांकि वो उस पर कितना, उस तथ्य पे कितना काम हो सकता है, कितना उस पर इन्वेस्टिगेट होगी, उस पर कितना कार्रवाई होगी, ये तो जो है तय जो है वो पुलिस और प्रशासन करेगा, जिस तरह से आपने ये बात रखी है। चलिए मैं वापिस आपके पास आऊंगा। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी, क्या कहेंगे सर इस पर? क्योंकि जिस तरह का अब एसजीपीसी ने ये कह दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए, और हालांकि वो एक एमपी है, हिमाचल प्रदेश से हैं, भाजपा से टिकट के बाद जीते हैं, क्या कहेंगे इस पर? अकाली दल का क्या स्टैंड? देखिए, कानून के सामने तो सभी एक जैसा है, चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई आम व्यक्ति है। तो ये बात ये है कि जो कंगना रनौत है, इसने फिरकू राजनीति से ही सब पाया है। तो देखिए कि बीजेपी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि ये कोई उनकी प्रिलिमिनरी मेंबर हो या इन्होंने पार्टी के लिए कोई काम किया हो। इसका एक ही काम है कि नफरत फैलाना। तो बीजेपी के अंदर एक ऐसा पक्ष बैठा हुआ है जो इसको बढ़ावा देता है। तो हम यही तो बात कह रहे हैं, जो हमारा श्रोमणी अकाली दल का इनसे नाता टूटा है, उसका भी यही कारण है कि वहां जो ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो इन लोगों को प्रमोट करते हैं, जो माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट करते हैं, उनको ये बढ़ावा देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको ये बहुत बड़ा मान सत्कार देते हैं। आप देखिए कि एक बार इंदिरा गांधी जब उनको गिरफ्तार किया गया था, तो दो भाई थे, पांडे भाई, उन्होंने एक हाई जैक कर लिया था, जहाज को अगवा कर लिया था। तो जब उन पर ट्रायल चलना चाहिए था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उससे पहले जो इलेक्शन हुए तो उन दोनों भाइयों को एक को मेंबर बना दिया विधानसभा का और एक को पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया, दोनों को टिकट दे दी। तो आप देखिए कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था पार्टी के लिए, या कांग्रेस के साथ उनका कोई नाता नहीं था। तो उनको ये ही उन्होंने सम्मान दे दिया कि आपने इंदिरा गांधी के लिए ये काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं सरदार साहब, मैं इनको भी कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को ऐसे लोगों से दूर रखिए। जो आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो फिरकू राजनीति करते हैं, जो गलत बातें करते हैं और जो धर्म के नाम की बात करते हैं और बांटना चाहते हैं, धर्म के लोगों को एक दूसरे से टकराना चाहते हैं, तो उनसे इनको दूर रहना चाहिए। देखिए, ठीक है, कंगना रनौत जो है उसने किसान संघर्ष पर जो बातें की और जैसे उन्होंने किसान जो लेडीज थी उन पर कटाक्ष किया, तो उसके बाद जितना भी उसका विरोध हुआ, उसके बाद जो एयरपोर्ट पर जा रही थी तो उस वक्त भी उसने टारगेट किया एक जो महिला कांस्टेबल थी, जो जिसका काम था कि उसने ड्यूटी पर चेकिंग करनी होती है, कुलविंदर कौर, तो उसको उन्होंने सरदारनी कहकर उनको खालिस्तानी बताया, कुछ ऐसा नाम दिया जिस पर उसको गुस्सा आया, उसने सिर्फ थप्पड़ जड़ दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बातें क्यों करते हैं। एक मेंबर पार्ली है तो उसको आपकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि वो कितनी बड़ी जो उसका स्टेचर क्या है, तो बात क्या कैसी कर रही है। तो उसका ठीक है, आप ताड़ना कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आप ताड़ना कर रहे हैं कंगना रनौत को भी, एक एमपी उनकी मर्यादा उनको कायम रखनी है। अमरजीत सिंह जी हमारे साथ है, भाजपा से हमारे साथ है। सिंह साहब क्या कहेंगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर सलाह भी दी है आपको कि आप इस तरह के लोगों को पार्टी से दूर रखें क्योंकि पार्टी कमजोर होती है। वहीं दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि भाई जो हमेशा ही जो है वो इस तरह के सिखों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं, कभी अलगाववादी, कभी आतंकवादी, तो कई तरह के नाम के साथ संबोधित वो करती आई हैं। अब उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है एसजीपीसी के द्वारा। देखिए जसबीर जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि जो एसजीपीसी है
अगर उसका इतिहास देखें तो कोई ऐसी छोटी बड़ी संस्था नहीं है, वो हम सिखों की सरमाएदार संस्था है। हम सभी के मनों में बहुत सम्मान है सिख उसके प्रति। और बिल्कुल। एसजीपीसी जो जिसका इतिहास है, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे बर्दाश्त किया है, बहुत सारे जुल्मों को सहा है, तब जाकर एसजीपीसी की स्थापना हुई। और सिख धर्म को लेकर एसजीपीसी की बहुत महत्वता है। लेकिन और मेरा कोई ऐसा कद नहीं है, मैं समझता हूँ कि मैं किसी भी तरह से उस कद के काबिल नहीं हूँ कि मैं एसजीपीसी की किसी भी बात को काट सकूं या मैं एसजीपीसी को कोई सुझाव दे सकूं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि इतनी बड़ी हमारी संस्था, जिसके ऊपर पूरे देश नहीं विश्व के सिखों की निगाह होती है और हर एक धर्म के उस व्यक्ति की निगाह होती है कि जो देखता है कि सिख धर्म जो कि दुनिया का सबसे, मैं मानता हूं, बेहतरीन धर्म है, जो खासकर महिलाओं की इज्जत करने में और आपसी भाईचारक सांझ को लेकर, दरबार साहब की बात करें, 4 दरवाजे बनाए गए थे गुरु साहब की तरफ से कि सभी धर्मों का स्वागत, सभी का सम्मान किया जाता है। लेकिन आज मैं हैरान हूं, मेरे को बड़े दुख के साथ और निमित्त होकर ये बात कहनी पड़ रही है कि एसजीपीसी आज अकाली दल के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है, जो सिखों के लिए नहीं काम कर रही है। एसजीपीसी आज वही बयान दे रही है जो अकाली दल को सूट कर रहा है। अब बताइए, मेरा ये मानना है कि एसजीपीसी का इतना बड़ा गौरव इतिहास है, एसजीपीसी का काम सिखों के मुद्दों के ऊपर उठाना है, सिखों के हर हक को, जब कोई बात होती है तो हम लोग सबसे पहले सिख लोग, लेकिन जब बात सिख धर्म की होगी तो एसजीपीसी उसमें सब सवाल तो खड़े करेगा ना। देखिए, एसजीपीसी का काम यह है और हम भी चाहते हैं कि एसजीपीसी सिख धर्म के हर मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाए, लेकिन किसी ऐसे मुद्दे को जो पंजाब का मुद्दा, जो और राजनीतिक दलों का मुद्दा है, उसमें एसजीपीसी अपनी इंटरफेरेंस कर क्योंकि हर एक व्यक्ति सिख है और जो भी सिख है उसकी भावनाओं को एसजीपीसी को समझना चाहिए। केवल और केवल अकाली दल के फायदे के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट दे, क्योंकि अगर आप देखिए, जब से बीजेपी के साथ अकाली दल का गठबंधन टूटा है तो एसजीपीसी ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दिया। अब कंगना जी की बात करते हैं, कंगना जी के हर बयान की मैं निंदा करता हूँ। जो भी उन्होंने कहा सिखों को लेकर उन्होंने कहा था, उन्होंने जब किसान के जो हुआ था धरने को लेकर कहा था कि बाड़े पे लोग लाए गए हैं, ऐसे लाते हैं, ये खालिस्तानियों का प्रचार हो रहा है, ये देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी सिख के ऊपर उंगली नहीं उठाई थी। दूसरा, अभी कंगना की बात जो एसजीपीसी के मेंबर और पीर मोहम्मद जी ने करी कि उसने नेम प्लेट पढ़कर ऐसे बोला। जसबीर जी, आपको शायद याद होगा, जब वो तमाचा कुलविंदर कौर ने मारा था कंगना को, जो मेंबर पार्लियामेंट, और कुलविंदर कौर अपनी ड्यूटी पर थी, सबसे पहला रिएक्शन जो वीडियो सामने आया था वो ये आया था कि इसने किसान आंदोलन पे कमेंट किया था, तब मैंने इसको देखते थप्पड़ मारा। जो नेम वीडियो वायरल है, जगह जगह पर वीडियो है। जो बात नेम प्लेट पढ़कर कहा गया जा रहा है, ये बाद में 2 घंटे बाद उसने अपने स्टेटमेंट में ऐड किया है। जो फर्स्ट रिएक्शन होता है हमेशा सच्चा होता है, और कुलविंदर कौर ने ये रिएक्शन, आपने ऑडियो सुना होगा कि वीडियो जिसमें कुलविंदर कौर कह रही है कि ये जो इसने मेरी माँ को धरने पे बैठी तो कमेंट किया था, तब मैंने इसको थप्पड़ मारा था। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन हम लोग एसजीपीसी पर आ रहे हैं कि एसजीपीसी, देखिए जैसे अभी एसजीपीसी मेंबर साहब ने बताया, सिखों का इतिहास, महिलाओं की इज्जत करना, ये सब करना है। तो जिस तरह से ये कोई और संस्था ऐसी बात करे, कोई और मुद्दे ऐसी बात करे, हम भी कंगना की इस बात को निंदा करते हैं कि वो किसी भी भाईचारक सांझ को तोड़ने की बात करती है, लेकिन क्या ये एसजीपीसी को ऐसे मुद्दों में दखलंदाजी देनी शोभा करती है कि जो सिर्फ अकाली दल को सूट कर रही है वो पॉलिटिक्स एंटर करना, जो सिखों एसजीपीसी के लिए, जसबीर जी आखिरी में, एसजीपीसी सिखों की सरमोद जथेबंदी है। आज एसजीपीसी को जो चिंता होनी चाहिए थी वो इस बात पे होनी चाहिए थी कि आने वाले समय में चुनाव हो रहे हैं एसजीपीसी के, कभी भी होंगे, जो वोटिंग बन रही है, आज से 12 साल पहले 55 लाख सिखों ने वोट बनाया था, 55 लाख सिखों ने, और आज अभी तक, जबकि मात्र कुछ दिन बचे हैं बाकी वोटिंग बनने में, अभी तक 27,80,000 वोट बने केवल सिखों के, जबकि सिखों का वोट बढ़ना चाहिए था। सिख पॉपुलेशन बढ़ रहा है और आज सिख वोट शेयर कम हो रहा है। एसजीपीसी को इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए सिखों के लिए। चलिए ठीक है, आपने एसजीपीसी के, ठीक है, आपने एसजीपीसी पर, ठीक है, चलिए ठीक है, एसजीपीसी के मेंबर हरजाब सिंह जी का रुख कर लेते हैं। हरजाब जी क्या कहेंगे? सवाल सीधे आपके ऊपर है कि अकाली दल के जो इशारे पर जो है वो एसजीपीसी काम करे, बड़े आरोप है आपके ऊपर। वो कहते हैं कि इस तरह के बयान देना, उसके पीछे के कारण अकाली दल है। देखो, मैं थोड़ी जिहा मुद्दा ते गल कर रखांगा, मैं बाहर नहीं जाता। सब तो पहला मैं होना वोटां की गल कर दी।
ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਪਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ। ਉਹ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ पहुंचेगी तो वो गल्लां सारियां होणगियां। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप इस मामले में दखलंदाजी दे रहे हैं, सियासत नहीं आपको करनी चाहिए, आप आखिर क्यों इस तरह से जो है बयान दे रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं कार्रवाई की? क्यों नहीं करेंगे जी? आपको सिखों के बारे में कितना मालूम है? मीरी पीरी का सिद्धांत क्या है? अकाल तख्त के सामने 2 निशान साहब लगे हैं, वो किसके लगे? जिसको मालूम नहीं है वो बोलेगा क्या? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जिसने भी बैठना है डिबेट में, पहले उसको एसजीपीसी बारे, सिख सिद्धांत के बारे वो सारी जानकारी होनी चाहिए। तो जहाँ कहीं भी ये प्रॉब्लम आएगी, सिखों के बारे में भी आएगी, कोई सिख चाहे कोई बुजुर्ग लेडी हो, चाहे बुजुर्ग चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, तो उसके बारे में जरूर बात करनी बनती है, करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब बात होगी सिख धर्म की और सिख की बात होगी तो वहां पर एसजीपीसी सीधे तौर पर उस पर दखल अंदाजी करेगी, ये कहना है हरजाब सिंह जी का। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी का। सर क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि भाजपा ने सीधे तौर पर जो ये कह दिया कि अकाली दल के इशारे पर अब एसजीपीसी ने ये बात रखी है। कई तरह के आरोप, हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार ऐसे कांग्रेस भी उठाती आई है, आम आदमी पार्टी भी करती आई है, सभी पार्टियां ये बार बार ब्लेम करती हैं कि जो है वो श्रोमणी अकाली दल के इशारे पे एसजीपीसी जो है वो इस तरह से काम करती है या बयान देती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे कंगना रनौत जिसको लेकर हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि बात की जो है पूरी तह तक जाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। थप्पड़ उन्हें मार दिया जाता है, उसके बाद उनका बयान दिया जाता है, कई घटनाएं भी होती हैं। हालांकि ये नफरत को लेकर कहा जा रहा है कि भाई नफरत फैलाने का काम जो है वो कंगना के बयान ने दिया, जिसके बाद कई ऐसी घटना भी देखने को मिली। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि उन्हें दुख होता है जब इस तरह से एक महिला के ऊपर आप जब ऐसी बात रखते हैं। देखिए, पहले तो इनको सरदार अमरजीत सिंह कह रहे थे सिखों की बड़ी महान संस्था है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत महान संस्था है। और ये जो हमारी 2 संस्थाएं हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल, इसका आपस में सुमेल है। श्रोमणी अकाली दल 1920 में बनता है और 1925 में गुरुद्वारा एक्ट बन जाता है, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद में आ जाती है। तो इसमें आपस में एक ऐसा तालमेल है, जैसे सरदार हरजाब सिंह ने बताया कि मीरी और पीरी का जो सिद्धांत है उस पर चलना हमारा कर्तव्य है।
और ये जो बातें हैं जो कंगना रनौत करे या कोई और करे, तो हमारा जो सिख समुदाय है विश्व पर जितनी जगह पर बैठा है, तो वो कंप्लेंट किसको करता है? जब अमरजीत सिंह जी के साथ कोई बात होगी तो ये भी कंप्लेंट एसजीपीसी को करेंगे, उनको बताएंगे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इनके बहुत सारे लोगों के साथ जब कोई बात होती है तो फिर एसजीपीसी के पास ही आते हैं, उनको ही कहते हैं कि हमारा ये मसला है, हम सिख हैं, हमारे नाम पर सिंह लगता है, कौर लगता है, तो हमारे साथ ये माइनॉरिटी के साथ ये कुछ हुआ। मैं बहुत लोगों को बात बता दूंगा कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, इवन कांग्रेस के लोग हैं, इनके साथ भी जब कोई माड़ा गलत बात होती है तो एससीपीसी के पास ही आते हैं। जब 1984 में जो 84 में जो जेनोसाइड हुआ सिखों का दिल्ली में, कानपुर, बोकारो में, तो वहां किसी ने नहीं देखा कि ये बीजेपी का था सिख, ये निरंकारी था, ये कांग्रेस का था। तो उस वक्त वो सभी को इसलिए मार दिया गया कि वो सिख था। तो हमारे जितने भी लोग हैं जहां जहां भी पर बैठे हैं, उनका ये करते हुए बनता है कि वो हमारी कम्युनिटी के साथ कोई भी गलत बात करता है तो अपनी पार्टी लाइन के पास से होकर भी एक ऐसी बात करें जिससे उनकी यूनिटी का पता चले। तो हम लोगों के लिए सरबत के भले की बात करते हैं, तो जेकर हम अपना भले की भी नहीं बात कर सकते तो फिर हमारा सिख होने का क्या फायदा? हमारे गुरु साहबान ने हमें बताया है कि संदेश दिया है, उन्होंने हमें हुक्म किया है कि आप किसी पर जुल्म होता नहीं देख सकते, तो जुल्म करने वाले के साथ भी आप लड़ सकते हो, और जुल्म सहना जो है वो भी गलत बात है। और बात कीजिए इनकी कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत, मैं यही पूछना चाहता हूँ सरदार अमरजीत सिंह जी, इसका बीजेपी के साथ नाता क्या था? इसको जो टिकट दिया उसकी की क्या क्वालिटी थी, उसकी क्या मेरिट थी? उसकी यही मेरिट थी कि उसने सिखों के ऊपर कटासे किया, किसानों के ऊपर कटासे किया, उसने ऐसी राजनीति को बढ़ावा दिया जिस राजनीति से फिरको हिंसा भड़क सकती है, जिससे संप्रदाय में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है जिससे लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। तो वो ही बात तो कर रही है, उसके कारण ही आज जो पंजाबी लोग हैं जब हिमाचल में जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, उनके साथ इतनी गलत बातें हो रही है। कोई फैमिली के साथ, ये सरदार अमरजीत सिंह ही है, ये जब शिमला में या उधर कसौली में या जो डलहौजी में कहीं पर जाते हैं तो इनको भी डर लगेगा, इनको भी ये लगेगा मेरे सिर पर दस्तार है, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर दे। तो ऐसी बातें करने के लिए इन्होंने जो कंगना रनौत जैसी औरतें हैं उनको इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, ये बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने बहुत अहम सवाल यहाँ पे उठाए हैं, उसका जवाब देने के लिए भाजपा से हमारे साथ है अमरजीत सिंह जी, हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि अगर सिखों की बात होगी, सिखों को कोई समस्या होगी तो वो सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास जाएगी, वो उसको हल करेगी, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सिखों की नुमाइंदगी करती है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और उसके साथ उनका ये भी कहना है कि आज जो हम सिर पर पगड़ी बांधते हैं, वो पगड़ी हमारा एक ये पगड़ी केवल पगड़ी नहीं है, वो सिखों की एक ताज है सिर का। और आज उस ताज को जब हम हिमाचल प्रदेश में हम एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हिंसा घटना ऐसी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा होता है, नफरत की वो कहते हैं बात होती है, नफरत फैलती है ऐसे, तो उसी की वो बात कर रहे हैं। देखिए जजबीर जी, पीर मोहम्मद साहब ने बिल्कुल सच बात कही है कि जब भी सिखों को कोई भी समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी, कोई ऐसी बात होगी तो सबसे पहले एसजीपीसी के पास ही जाएगा, और जाना भी चाहिए, और ये हमारा हक है। एसजीपीसी किसी की जागीर नहीं है, वो पंथ की है, सिख कौम की है, पूरी कौम को सर वो करती है, किसी एक पार्टी को या एक परिवार की वो संस्था नहीं है, जागीर नहीं है। इसलिए हम सभी का वो हक है वहां जाना, और हम मान और सम्मान के साथ जाते हैं, खुशी के गर्व के साथ जाते हैं कि एसजीपीसी हमारी है और हम वहां जाएंगे। इसमें किसी से हमें किसी को आज्ञा या पूछने की जो राय की जरूरत नहीं है, वो सिखों की समुद्र हमारी वो कौम की वो सरमाएदार संस्था है। अभी एसजीपीसी मेंबर ने एक बहुत बात कही कि ये बीजेपी में होकर सिख बीजेपी में होकर कैसे हो गए, पगड़ी पहनकर बीजेपी में कैसे बैठ जाते हैं। बहुत कड़े शब्दों में इनकी इस बात की निंदा करता और इनकी ऐसी सोच की
कि जो एसजीपीसी मेंबर हैं, उस संस्था के मेंबर हैं, जो सबको एक साथ लेकर चलने चाह रहे हैं, और जो बोल रहे कि सिख बीजेपी में कैसे आ गए। मैं इनको बता दूं, हमारा को बीजेपी के साथ को वो नहीं, हम सिख हैं पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखों के लिए किया, क्या जो करतारपुर का पाकिस्तान का कॉरिडोर बना, वो किसने बनवाया था? तब क्या बीजेपी खराब थी? आपने बोला कि बीजेपी की सोच ऐसी है वैसी है। जब तक अकाली दल बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब में सत्ता कर रहा था, तब तक बीजेपी ठीक थी। अब आप क्या अलग हो गए, हम अलग हो गए राजनीतिक कारणों से, तो अब पंजाब में जो बीजेपी में सिख है वो गलत है क्या? हम बीजेपी ने जो सिखों के लिए किया वो हमारा फर्ज है, और बीजेपी का वो सिखों के प्रति फर्ज है, मैं कोई जता नहीं रहा हूं। लेकिन वीर बाल दिवस मनाना, लाल किले पे जहां पे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया जाता है, वहां पर उनका शहीदी दिवस मनाना, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध थे हमारे, ऐसे संबंध नहीं, लेकिन आप देखिए, आप सरदार की बात करें, आप सिख की बात करें, लोग कहते हैं कि भाई सिख जब पगड़ी बांध कर हिमाचल में जाता है तो अपने परिवार के साथ डर के माहौल में रहता है। बिल्कुल डर के माहौल में नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी वहां पे हिमाचल में घटनाएं हुई है, धर्मशाला में घटना हुई है, और जो मंडी में घटना हुई है, वहां की हिमाचल पुलिस ने आपको वीडियो दे दी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अकाली दल ने वो वीडियो देखी है या देखकर उसे इग्नोर कर दिया है। किस तरह से पहले दो गुटों के बीच में गाड़ी को ओवरटेकिंग को लेकर झगड़ा हुआ था, जो बाद में वहां की पुलिस ने सारा दिखाया गया है। और एक जो मंडी में गाड़ियां तोड़ी गई थी, वो कह लिए पंजाबी की गाड़ियां नहीं थी, वहां पे लोकल मॉब्स कम हुआ था, और जिसमें कहीं पर भी पंजाबी कम्युनिटी को या सिख कम्युनिटी को लेकर टारगेट नहीं किया गया था। उससे पहले भी, उस दिन भी और आज भी अनेकों सिख हिमाचल जा रहे हैं और बड़ी खूबसूरती और शांति के साथ वहां आ रहे हैं। ये केवल और केवल, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, अकाली दल लगा हुआ है कि किसी तरीके से हम पंजाब में एक जो भाईचारक सांझ बन रही है, जो बीजेपी का विस्तार बढ़ रहा है, उसको कमजोर किया जाए। और ऐसा कुछ नहीं है, एसजीपीसी का सब सम्मान करते हैं, लेकिन तो जी इस बयान से क्या आप समझते हैं, जिस तरह का बयान था, मैंने भी वो बयान सुना है, उसमें आतंकवादी, अलगाववादी, उससे पहले भी एक बयान था, तो इस बयान से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं उस बयान की 100 बार निंदा कर चुका हूं, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक सदस्य पंजाब, खासकर पंजाब से संबंधित उस कंगना जी के उस बयान की निंदा कर चुके हैं। और जो बात ये बोल रहे कि किसान समय पे, वो तो 4 साल पहले बयान दिया था, तब एसजीपीसी ने क्यों नहीं किया गया? तब अकाली दल की तरफ से कोई आदेश नहीं आया होगा, इनको लगा होगा ठीक है अब अकाली दल की तरफ, क्योंकि अकाली दल खुद संकट में है। अकाली दल बस मुद्दों को भड़काना चाहता है। अकाली दल के ऊपर जो संकट है वो हम सब जानते हैं। अकाली दल हमारी पंजाब की एक नैतिक छोटी पार्टी है, हमारी पंजाब की पंजाबियों की पार्टी है। जिस तरह से आज अकाली दल का हाल, हमें भी दुख होता है कि हमारी क्षेत्रीय पार्टी है जिस तरह बढ़ रही है, लेकिन यही कारण है कि अकाली दल को समझना चाहिए कि आज पंजाब के लोग क्या चाह रहे हैं। सब लोग भाईचारक साथ में रहना चाहते हैं, सब जहां पे ये हिंदू सिख वाली बात नहीं चाहते हैं, लेकिन वही आज फिर अकाली दल अपनी शेल्टर बना रहा है इस मुद्दों को। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सबको एक साथ लेकर, एसजीपीसी का बहुत सम्मान है, लेकिन एसजीपीसी को भी मुद्दों पे समझना चाहिए ना कि हमें पंजाब के मुद्दों को, सिखों के मुद्दों को उभारना चाहिए। जैसे वोटों की बात की मैंने, इन्होंने हरियाणा की बात की। सर, हरियाणा और पंजाब, अब मैं पंजाब के आंकड़े दे रहा हूं, हरियाणा के आंकड़े नहीं दिए मैंने अभी तक। हाँ, हरियाणा के आंकड़े मिला लेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर वोट शेयर बनता है। ये पंजाब का ठीक है थिन साहब, ठीक है, हरजाब जी का रुख कर लेते हैं। हरजाब जी क्या कहेंगे इस पर? वो कहते हैं कि भाई आज अकाली दल इस पर सियासत कर रहा है। ये तो एलिगेशन हमेशा ही ये लोग डालते हैं। मैंने तो इससे पहले भी बोला था कि जब पुराना समय था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इनके लीडर थे, प्रधानमंत्री भी थोड़े के बने, सब लोग चाहे इनकी सोच बहुत अलग थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ बदला है वो आपने भी देखा है। आप अमृतसर में अभी थोड़ी देर पहले के अमृतसर के ही हैं, तो आपने कुछ एक लीडर का और भी नाम लिया, मैं नहीं वो लेना चाहता। अमृतसर में जो कुछ कैसे वो हालात बने 84 के पहले के, वो क्या कौन से कितने वो जुलूस निकलते रहे अमृतसर, कैसे वो जुलूस थे, कैसे क्या उसमें होता था। मैं उसको दोबारे वो जो पीरियड था आया, वो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मगर जो बना हुआ है एक सिखों के खिलाफ जो बना हुआ है केंद्र के मैंने के, वो सिर्फ यही है। बट फिर आज जो ये गल कर रहे हैं श्रोमणी कमेटी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, श्रोमणी कमेटी को जो करना है, श्रोमणी कमेटी ने कभी 5 लाख बंदों का रोज राशन बनता है,
5 लाख में से 3 लाख से ज्यादा या 4 लाख से ज्यादा तो वो दूसरी कम्युनिटी के होते हैं। दरबार साहब में कितने लोग आते हैं, उसमें सिख कौन कितने होते हैं और दूसरी कम्युनिटी के कितने आते हैं। अभी पीर मोहम्मद साहब ने आपको पहले बताया था कि गुरु साहब ने तो 4 दरवाजे रखे हैं। क्यों 4 दरवाजे रखे? क्यों 4 वर्णों के लिए साझा, हर एक कोई आदमी आ सकता है, चाहे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई जो भी है, इसी का प्रतीक है वो। चलिए तो ठीक है, बिल्कुल। हमारे दिल में अभी भी नहीं है कुछ, मगर ये यहाँ इन लोगों को, कुछ लोगों को पढ़ाया ही जाता था। ये बातें वाजपेयी के समय क्यों नहीं आई? आई कभी? आपने देखा कभी? अब क्यों आ रही है? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात में मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज जो राजनीति का स्तर नीचे गिर चुका है और राजनीति के अंदर जो है इस तरह का बदलाव हमने देखा, जिस बदलाव को लेकर कई तरह के सवाल है। हालांकि सवाल भाजपा के ऊपर है कि भाई भाजपा ने जिस तरह की, क्योंकि भाजपा के इसलिए है कि कंगना रनौत जो है वो भाजपा के टिकट से जो है हिमाचल से चुनाव लड़ते हैं और वहां से एमपी जीतते हैं। उसके बाद जब उनके थप्पड़ मार दिया जाता है, हालांकि सभी पार्टियां इस थप्पड़ को लेकर निंदा करते हैं, लेकिन जिसके बाद कंगना रनौत ने आतंकवाद और पंजाब को इस तरह का बयान दे दिया, जिसके बाद नफरत फैली और नफरत को लेकर ही एसजीपीसी ने कार्रवाई की बात की। एक बात करूंगा, क्या उस लड़की ने जो सिक्योरिटी कर रही थी वहां, उसने किसी को कभी थप्पड़ मारा? उसका पुराना रिकॉर्ड देखिए, उसके पुराने रिकॉर्ड में क्या है कि रोज झगड़ा करती है। चलिए ठीक है, क्योंकि उनका तो काम है सिक्योरिटी करना। हालांकि ठीक है सर, बिल्कुल मैं गया है उस कहने के बाद जो उसका में आके उसने थप्पड़ जड़ दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई भी आदमी है, चाहे कोई औरत है, कोई अपनी ड्यूटी की उसके ड्यूटी में विघ्न डालेगा, उसको रोकेगा ड्यूटी में करने के लिए, तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन तो होएगा ही। चलिए ठीक है सर, ठीक है, एक्शन तो होना था, जिसको लेकर अब जो है बिल्कुल लोगों को जिनकी ऐसी सोच है उनको अपना वतीरा जो है, अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना चाहिए। चलिए ठीक है, माइंडसेट चेंज करना चाहिए। करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी का रुख कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि कई तरह के आरोप आपके ऊपर भी लगते हैं, अकाली दल से भी। आप भाजपा का ये कहना है कि जब आप हमारे साथ थे तब आपको हमारी राजनीति पसंद आती थी, आज जब हमसे अलग हो गए हमारी राजनीति आपको पसंद नहीं आ रही। वो कहते हैं कि जब अकाली दल हमारे साथ सत्ता में रहा उस समय हमारे जो है वो एक लतीफे पड़े जाते थे, आज हमारे ऊपर नफरत फैलाने का और इस तरह से जो है वो बयान दिया जाता है। वो कहते हैं कि अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए अकाली दल सियासत कर रहा है। देखिए, एनडीए में जितने भी हम गठबंधन में लोग थे, अकेले हम नहीं, हम हरियाणा में जो एनएलओ है और जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और आगे जाकर देखिए जितने भी जो गठबंधन में इनके साथ थे, तो कोई भी इनके साथ नहीं रहा। आज तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ना होते तो ये सरकार भी नहीं बना सकते थे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या ये चाहते हैं कि एसजीपीसी कंगना रनौत को सम्मानित करे कि वो बड़े अच्छे काम कर रही है? जो गलत बातें कर रही है कंगना रनौत, तो वो इसका बेड़ा गर्क कर देगी इनकी पार्टी का। ये जितना उसको बढ़ावा देंगे। पहले कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जो सिखों के कातिल थे उनको पनाह दी, जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को, जो कमलनाथ को, HKL भगत को, धर्मराज शास्त्री को, जितने भी वो लोग थे जो सिखों के कातिल थे, उनको उन्होंने पनाह दी अपनी पार्टी में। तो कांग्रेस का क्या बचा है? कांग्रेस बार बार हार रही है और उसका आज जो हश्र हुआ है, तो अब वो एनालिसिस कर रहे हैं, आज वो आत्ममंथन कर रहे हैं। आज राहुल गांधी, एक आरोप आपके ऊपर ये भी लगता है, वो कहते हैं कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए और अपनी जो आपका स्तर नीचे गया है उसको ऊपर उठाने के लिए कभी आप बंदी सिंहों की वो कहते हैं बात करते हैं, कभी आप इस तरह से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं या उनके सामने खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अब आपकी मजबूरी बन गई है कि भाई अगर सियासत करनी है तो आप तमाम मुद्दे आगे लेके आए, वो मुद्दे जिनको कहीं ना कहीं अकाली दल पीछे छोड़ चुका था। वो कहते हैं कि अब उन मुद्दों पर आ रही है अकाली दल। ये देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये है, वो हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है, हर पार्टी अपने एजेंडे पर चलती है। हमने हमारे बंदी सिंह है तो उनके लिए हम क्या कह रहे हैं कि उन्होंने देश के कानून ने जो उनको सजा दी है
उन्होंने सजा पूरी कर ली है, देश का कानून एक है, तो उनको आपने बंदी बनाकर क्यों रखा है? तो ये बात श्रोमणी अकाली दल भी करता है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी करती है, जितने भी सिख समुदाय के जितने भी लोग हैं वो सभी ये बात करते हैं। तो हमारे लोगों की बात हम क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने राम मंदिर की बात की नहीं, इन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में जो कानून का फैसला था उसके बाद इन्होंने राम मंदिर बनाया। तो इनकी वो राजनीति है, हमारा जो धर्म की राजनीति है, हमारी राजनीति में जो हमारे साथ मौके की हुकूमत जो है, चाहे कांग्रेस है चाहे आज बीजेपी है, जो भी गलत बात हमारे साथ होती है तो हमारी पार्टी के जो आदेश बनता है क्या वो उसके ऊपर अपना काम करे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बीजेपी में ऐसे लोग हैं इनको पीछे हटाना चाहिए और इनको जो उनके विराम लगाना चाहिए, जो गलत बातें वो करते हैं, तो ये इनका फर्ज बनता है। हमारा कोई प्रवक्ता है श्रोमणी अकाली दल का या एसजीपीसी का, तो कोई नफरत की बात करता है तो हमें बताएं कि वो किसी धर्म के बारे में गलत बोलता है तो हम उनको रोकेंगे। लेकिन ये अमरजीत सिंह जी ने एक बार भी नहीं कहा कि कंगना रनौत जो है हमारी पार्टी में जो बैठकर हमारे प्लेट पर फॉर्म पर बैठकर जो ऐसी बातें करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि चलिए ऐसे बयान जो है उसको, जो बयान सीधे तौर पर जो है समाज में नफरत फैलाए, उस बयान को राजनीतिक जो लोग हैं वो नहीं देना चाहिए, ताकि समाज जो है वो सब धर्म जो है एक साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन जब इस तरह से बयान, विवादित बयान दिए जाते हैं, एक टारगेट किया जाए तो उसके बाद नफरत फैले, तो वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है, जिसको लेकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर जो है वो कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की बात रखी है। लेकिन ऐसे में भाजपा का सीधे तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं सियासत है, लेकिन ऐसे में इस मामले को लेकर अब क्या नया रुख आएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन कंगना रनौत थप्पड़ विवाद कहीं ना कहीं सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह से पहले थप्पड़ उन्हें मार दिया गया, उसके बाद उनका बयान दिया गया, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हमने देखी। लेकिन ऐसे में अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सीधे तौर पर कार्रवाई की बात की है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।